Good evening, everyone. Today I'm Sneha and my friend Priyanshi presenting on creating hope through action. इस इमेज को देखकर आप लोगों के माइंड में पहला थॉट क्या आ रहा है? कैन एनीवन प्लीज टेल? Suicide. Okay. Attempt suicide is also known as parasuicide, when people lost their last hope and they can't afford struggle. क्या आप बता सकते हैं कि सुसाइड रेशियो नॉर्मली डेथ रेशियो से कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा? Any guesses? Please repeat the question. क्या आप में से कोई बता सकता है कि सुसाइड केस या सुसाइड रेशियो नॉर्मली डेथ रेशियो से ज्यादा होगा या कम होगा? आई थिंक ज्यादा। कितना ज्यादा लगता है आपको? Okay, what do you presenters? Let's see suicidal data in India. 70% of total deaths in India occur due to suicide. More than 1 lakh people commit suicide every year. Every year, one student commits suicide in India. आप सभी को तो पता ही होगा केरला एक एजुकेशनल स्टेट है, मोस्ट एजुकेशनल स्टेट है, फिर भी वो सुसाइडल रेशियो में सेकंड नंबर पे आता है। एनीवन वांट टू शेयर कि उसका रीजन क्या होगा? A very good question. कि केरला में बहुत percentage of education people who are literate is very high, but still the rate of suicide is very high. Can you think of that? कि पढ़ लिख के भी क्यों वो सुसाइड करते हैं? Any guesses? I think pressure, What kind of pressure? सक्सेस होने का, कैरियर का और थोड़ा सोशल लाइफ का। Yes. Good points. Anyone else? मैम एग्जाम में फेल होना। Okay. मैम पीयर प्रेशर होना मैम, सोसाइटी का। कोई? Yes. एनीवन एल्स? या ऑफ कोर्स, बिल्कुल प्रेशर और एक्सपेक्टेशन। वहाँ के लोगों के एक्सपेक्टेशन इतनी हो जाती है कि और जो वो लोग पढ़ते हैं तो बहुत टाइम वो लोग समझ भी नहीं पाते, और उनके एक्सपेक्टेशन जो होती है वो अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो अचीव नहीं कर पाते। इस वजह से केरला सेकंड नंबर पे सुसाइडल रेशियो में आता है। हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पे लाई करता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में कितने सुसाइड होते हैं? Any guesses? 60-70%। Okay. Yes, presenters. Global data say 8 lakhs people die due to suicide every year. One person every 40 seconds dies of suicide. अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि इन द सुसाइडल केस मेंस हैव मोर नंबर. व्हाई? कैन एनीवन प्लीज टेल? कैन आई? Yes. Yes.
क्योंकि मैन पे जो है ज़्यादा प्रेशर रहता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये सक्सेस अचीव करेंगे, वाइल जो वुमेन है उस पे ये प्रेशर कम रहता है कि इसे सक्सेस अचीव करना है, या फिर टाइप का प्रेशर थोड़ा कम बनाया जाता है। Okay. Anyone else? कोई क्या रीजन हो सकता है कि why do men commit suicide more than women? आई थिंक मैम अगर हम डिफरेंट कंट्रीज का इसमें ग्राफ देखें तो हर कंट्रीज में अलग है, मतलब रेशो ऑफ मेन सुसाइडल एंड रेशो ऑफ वुमेन सुसाइडल, तो मे बी डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड द सिनेरियो ऑफ द कंट्री कि कहाँ पर किस तरीके से ट्रीट किया जाता है लोगों को, उस पर भी डिपेंड करता है। Very good way of thinking. एक बात मेरे भी दिमाग में आ रही है कि do you think that females are more mentally strong as compared to men? कि mental strength females में ज्यादा नहीं होती? यस मैम। Yes, Karan Sodhi sir is also saying that women are emotionally stronger than men. Thank you, sir. I also agree with it. Yeah. Any other point that comes to your mind? Think. You'll get some more points. Why do you think could be the reason? We are waiting for more answers. I know this is not directly related to your daily life, but this is also a topic which we should discuss so that we all learn what to do in such a situation. Okay, over to you, presenters. Due to the higher risk to lost their identity and financial problems. I think this is a very good point. Image की भी एक issue होता है कि men are more, serious about their image. So they, whenever they feel that they are not up to what their image is, they try to run away from the situation and commit suicide. Yes, ma'am. Good. Another good point. आखिर क्या रीजन होते हैं कि लोग अपने से दूर होने के लिए ये कदम बढ़ाते हैं? So anyone want to share? Depression. Yes, one reason is depression. What about others? Family pressure. Family pressure. सोसाइटी प्रेशर, नेगेटिव थिंकिंग। Yes, your thoughts are not positive. You always think of something bad might happen to you. lack of confidence, Very good. Hopelessness. एक पॉइंट ये भी है कि जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं औरों के साथ शेयर नहीं करते हैं। जब हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो हमें उसके लिए कोई सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसी शर्म में कि कोई क्या कहेगा या इस चक्कर में जब अपनी बात शेयर नहीं करते हैं तो वो अंदर ही अंदर नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होती रहती है। Very good. I mean, और lack of communication. बहुत अच्छा पॉइंट मैम आपने बोला है. And we have another participant, Juni, who's saying problems, life की problems, lack of confidence. Anyone would like to add? कई बार मैम सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है, जब हमें लगता है कि हम खुद ही अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है या कोई होप नहीं मिलती या कोई उम्मीद नहीं होती, तो भी वो भी रीजंस हैं सुसाइडल के। Yes. Expectations from self. Amrita, you were also about to say something? Ma'am, I am saying society pressure. Society pressure. Okay. And ma'am, when we teach another person a lesson. Yes, sometimes we are trying to take revenge. और सोचते हैं कि दूसरे को हम दिखाते हैं हम like what we can do. मैम, वन
is bullying also. Bullying also is one of the cause. और आज आई थिंक कंपैरिजन भी, अगर हम किसी के साथ अपना कंपैरिजन करने लगे तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते ऐसी सिचुएशन में भी। yes, I agree. आजकल तो साइबर बुलिंग भी एक बहुत कॉज बन गया है। ब्लैकमेलिंग, somebody has shared blackmailing. Yes. Anything more to add? मैम स्टडी का भी प्रेशर होता है जिसमें सुसाइड Okay, pressure of studies also. Over to you, presenters. सिर्फ डर या कोई बीमारी सुसाइड का शिकार तो नहीं है। और ये जो डिप्रेशन एक्सपेक्टेशन है ये किन वजह से होती हैं? सम मोर एग्जांपल्स आर मार्शियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड रिलेशनशिप। और मेन इज एक्सपेक्टेशन। हर बच्चे पे, हर एक इंसान पे एक्सपेक्टेशन होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स पे होता है कि उनके पेरेंट्स उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने ये एक्सपेक्ट किया था। देन दे स्टार्ट इमोशनल ब्लैकमेलिंग। all of you know recently example of कोटा। वहां पे कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था और उनका मेन रीजन यही था, एक्सपेक्टेशन और फेलियर। Very true. Warning sign of suicide. Can anyone tell what do you understand by warning sign of suicide? कई बार हम ऐसे कहते हैं कि किसी ने सुसाइड किया लेकिन कोई साइंस नहीं थे या पता नहीं चला, तो क्या पता चलना चाहिए कि हाँ ये इंसान परेशान है और इतना बड़ा स्टेप ले सकता है? क्या साइंस हो सकते हैं? एक तो जो पर्सन है ही और शी में भी वो आइसोलेशन में रहना शुरू कर देते हैं। यस, वेरी ट्रू। लैक ऑफ इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, यस। एनीवन एल्स? बिहेवियर रूड हो जाता है, सबसे अलग रहना रहता है। आइसोलेशन, आई थिंक हम डायरेक्ट सीक्रेटिव और इंट्रोवर्ट बिहेवियर। जस्ट सोचो कि ऐसा कोई इंसान जो परेशान हो, उसके साइन, जो बहुत परेशान हो उसके वार्निंग साइंस क्या होते हैं? सुसाइड इज वेरी एक्सट्रीम स्टेप, बट आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली में आपने कोई देखा हो कि बहुत परेशान होता है, तो उसके साइंस क्या हो सकते हैं? कैसे पता चलता है? मैम मैम उस इंसान को गुस्सा भी बहुत आता है। ओके, यस। एंगर, एंजाइटी, मैम वो सबसे बात करना बंद कर देता है। ओके। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यस मैम, उसको चिड़चिड़ाहट होती है राइट। नेगेटिविटी अगर आती है उससे। उसके। यस मैम। मूड स्विंग्स, कभी अच्छा होता है फिर एकदम से गुस्सा आ जाता है। यस मैम, माइंड चेंज होता रहता है। हम्म। भूख कम लगना या ज्यादा लगना, या Yes, abdominal पेन, या फिर नींद ज्यादा आना या कम आना, तो एक्सट्रीम में जाते हैं उसके बिहेवियर। yes, extreme behaviors. Very good examples. What other signs could it be? सोचो कभी किसी को परेशान देखा हो या खुद भी परेशान हो तो आपको नजर आया हो कि आप में क्यों चेंज आया हो। मैम ऐसा होता है, अगर हम परेशान होते हैं तो अगर हमें कोई सही बात भी बोल रहा होता है सामने वाला, बट हमें उसकी बात ठीक नहीं लगती, हमें हमारे माइंड में वही घूमता रहता है जो हम सोच रहे होते हैं या जो भी, तो हमें गुस्सा आ जाती है उस टाइम पे। यस, हमें दूसरे की बात सुनने का मन ही नहीं करता। हमें लगता है कि तुम चुप हो जाओ, what I am saying is right या what I am thinking is correct. यस मैम। Yeah. Anybody else? मैम काफी लोग बीमार भी पड़ जाते, काफी लोग। Right. इलनेस हो जाती है। Over to you, presenters.
appearing depressed or sad most of the time. Depressed means people dead 50%, feeling hopeless, expressing hopelessness. When people go in hopeless stage, then they can't give efforts in education, social welfare things, etc. Withdrawing from family and friends. Family and friends से दूर हो जाना. Sleeping too much or too little. स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल एक स्लीपिंग डिसऑर्डर प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ये स्ट्रेस और डिप्रेशन से होता है. Very well said. If you just see all of these points, this all show that the person is trying to stay away from others. वो सबसे दूर होने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो ज्यादा सो के कर रहा है या अपना दुख शो कर रहा है. तो these are the basic signs when a person is not enjoying with the others or is not involving oneself. ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं. और कई बार हम उसको चिढ़ के बोल देते हैं, ये तो अलग ही रहना चाहता है, इसको छोड़ो. बट आई थिंक दिस इज अ गुड एग्जाम्पल, लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, कि हमें किसी को ऐसे छोड़ना नहीं है, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी चाहिए. लेट्स गो. And when Yeah. their nature also look different from others. Yes. Anybody else would like to add anything to it? Okay, over to you. क्या अगर वे सुसाइड करते हैं तो क्या वह लास्ट सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का? नो. No, ma'am. अगर वो ऐसा करते हैं तो यह सबसे बड़ी गलती है और उन्हें सुसाइड से बचाना होगा. लाइफ में अप्स एंड डाउन्स सबके पास है, तो क्या सुसाइड इज द लास्ट ऑप्शन? नो मैम, बिकॉज सुसाइड करने से हमारी लाइफ खत्म हो जाती है, बट हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म नहीं हो जाती है. अगर हम अपनी लाइफ को ऐसे लाइफ जीते जीते अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए भी ठीक है. और प्रॉब्लम्स ज्यादा टाइम के लिए नहीं, प्रॉब्लम्स कुछ टाइम के लिए आती है और वो प्रॉब्लम ठीक भी हो सकती है. अगर वो ज्यादा ही कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए. सुसाइड करने से उसका सॉल्यूशन नहीं निकल जाता. वेरी वेल सेड. बहुत बढ़िया. और कोई ऐड करेगा? Yes, ma'am. May I? यस डार्लिंग. जैसे ये स्लाइड आई, एक बात मेरे दिमाग में आया, फ्लाइट एंड फाइट जो हम बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, हम फाइट नहीं करते, फ्लाइट कर जाते हैं. सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश ही नहीं करते हैं. बहुत बढ़िया डॉली. आई मीन दिस इज समथिंग आई रियली वांटेड टू से, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि माय स्टूडेंट्स आर सेइंग इट. ये हम कई बार डिस्कस कर चुके कि व्हेन वी फेस अ सिचुएशन, शुड वी फाइट और फ्लाई फ्रॉम इट, शुड वी, हाउ टू फेस इट. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप सब इस बात को समझ गए हो कि सिचुएशन को फाइट करना चाहिए, इसके बजाय कि हम वहां से फ्लाई कर जाएं या भाग जाएं. क्योंकि सिचुएशंस को फेस करने की सबसे इम्पोर्टेंट है. भागना इज नॉट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम. बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सुसाइड डजंट टेक अवे द पेन, इट गिव्स इट टू समवन एल्स. वो जो प्रॉब्लम आपकी है वो आप किसी और को आगे दे रहे हो, विच इज नॉट गुड. सॉल्यूशन नहीं है वो. एनीवन वुड लाइक टू ऐड? Ma'am, everyone has the power to say this is not how my story will end. Very good. Very good words. This is not you want your story to end. You don't want people to remember you as a coward, कि भाई ये तो बहुत ही डरपोक सा इंसान था जो फेस ही नहीं कर पाया. Very good. Anyone else? और कोई point? Okay. We have to fight
with problems. And last thing from my side, life is called struggle. Struggle is life. संघर्ष ही जीवन है. बहुत बढ़िया. We all face problems. We need to fight them, face them, find solutions. And the best way of finding solutions is communication. Talk to people around you, trust them, and share your feelings. अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हम उससे पहले ये तो नहीं कहेंगे कि हेल्पलाइन नंबर इज दिस एंड यू कैन कॉल. हम उससे ये कह सकते, हम उसे खुद से कैसे सेव करें या उसे कैसे समझा सकते हैं और उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं. मैम हमें उसकी पहले तो प्रॉब्लम जाननी है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम है. उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन निकालना होगा. उसको उसकी पहले पूरी प्रॉब्लम जाननी है, उसको क्या प्रॉब्लम है. अगर वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो हमें उसमें मतलब एकदम डीपली उसमें जाके और क्या कहते हैं उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होगा. उसको समझाएंगे, एक बार में नहीं समझ आएगा, बार बार उसको बोलेंगे हम वही बात, तो हाँ वो भी सोचेगा कि इसकी बात में भी कोई वो है जिससे मतलब. यस मैम. Yes, yes. We have to find out the problem and help out. Okay. We have to get the solutions. Anybody else? मैम मैं जैसे अगर Yes, one by one. मैं आई डॉली. Yes, Dolly. अगर उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हमने भी फेस कर रखी है तो हमने जब वो फेस किया तो उस टाइम क्या सॉल्यूशन, उसका कैसे सिचुएशन को वो हैंडल किया, क्या सॉल्यूशन निकाला, उसका हम एग्जांपल उसको देके समझा सकते हैं. Yes, we can share the solution we found out so that उसको कहीं पे लगे कि हाँ ये इसने solution ढूंढ लिया तो मैं भी ये solution ढूंढ सकती हूँ. Very good. Anybody else? अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड फ्लैग्स, जो अभी हमने इनके इनके सिग्नल्स देखे थे, अभी सुने थे, डिस्कस किए थे. तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन की Yes. शुरू में ही अगर हम आइडेंटिफाई कर लें और फिर उस हिसाब से उसको गाइड करें अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रॉब्लम. और अगर क्लिनिकल हेल्प की भी जरूरत है तो उसके लिए भी उसको गाइड करें. और जो ये हम वेबिनार कर रहे हैं ये भी इसी डायरेक्शन में एक स्टेप है कि अर्ली सीड्स जब शो हो रहे हैं तभी एकदम आइडेंटिफाई कर लेना ताकि वो उस स्टेज तक पहुंचे ही ना वो. यस मैम, बिल्कुल ठीक बोला कि जितना जल्दी हम ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी सॉल्यूशन हो पाएगा. एंड अर्ली आइडेंटिफाई हम तभी कर सकते हैं व्हेन वी आर इन गुड रिलेशन विद एवरीबडी अराउंड अस. हम उनसे बातचीत करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं. एक और चीज है, अगर हम किसी से डिस्कस करते हैं, हमें कोई साइन मिलता है और हम उसे कोई हमें डिप्रेस दिखाई दे रहा है, उसकी प्रॉब्लम पूछ के हम उसे सॉल्यूशन देते भी हैं, तो उसके बाद भी हमें एक फॉलो अप रखना चाहिए कि क्या उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, नहीं हुई है, अब क्या सिचुएशन है. कई बार होता है हम हेल्प करके या गाइड करके फिर आगे फॉलो अप नहीं करते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा. वी नीड टू फाइंड आउट कि जो हमने सॉल्यूशन दिया है वो एप्लीकेबल हुआ भी है कि नहीं, या फिर उसको कोई सॉल्यूशन मिला है जिसको भी हमने हेल्प करने की कोशिश की है. ओवर टू यू. If you see warning sign in him, you should understand that it is a cry for help. Firstly, you should not talk him about suicide. It's a natural to feel uncomfortable or afraid. We should try to make positive environment. और अगर आप उससे क्लोज वन नहीं है तो ट्राई टू बीइंग क्लोज वन और उसकी प्रॉब्लम समझो ताकि वो किसी और को ना बता पाए, और क्या पता सामने अगर कोई किसी और को वो बताए और उसकी प्रॉब्लम को वो फायदा उठा ले.
तो आप उसे वो करने से मना करें, आप उसकी प्रॉब्लम को समझें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। Very good. There are some points: counseling, better communication and bonding. Clinical diagnosis don't take preparation. उसको और प्रेशर भी ना दें और खुद भी प्रेशर ना लें, और उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाए, जैसे उसके उसके बेस्ट फ्रेंड जैसे या उसके पेरेंट्स जैसे एक अच्छी बॉन्डिंग बना पाए। वो हो नहीं सकती, बट वी कैन ट्राई। एंड गिव फर्स्ट काउंसलिंग टू योरसेल्फ। Very good points. मैम मैं एक और एग्जांपल ऐड करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। मैम जैसे हम स्कूल में नुक्कड़ नाटक करते हैं, तो इससे प्रिवेंशन नुक्कड़ नाटक करें और उसको फिर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सोशल मीडिया पर, तो उससे भी बच सकते हैं। यस, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आज हम ये जो कर रहे हैं वेबिनार, इसका रीजन यही है, कीर्ति मैम ने ही एडवाइस दिया था और सजेस्ट किया था कि क्योंकि ये हमारा सुसाइड प्रिवेंशन वीक चल रहा है, तो अगर हम इसके अवेयरनेस इस सेशन के थ्रू करेंगे तो बहुत लोगों को इस बात की एक फीलिंग आएगी कि यस, वी कैन ऑल्सो हेल्प समबडी एंड वी शुड डू दैट। तो अवेयरनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर एडिंग दैट। And ma'am, whatever EMC happiness curriculum that we are doing, तो उसमें जो फर्स्ट के few minutes हैं हम mindfulness करते हैं, और बाद में जो एक्सप्रेशन लेते हैं स्टूडेंट से, तो वो भी एक इसी के लिए एक स्टेप है कि बच्चों को एक्सप्रेस करेंगे तो उनकी अंदर की फीलिंग्स समझ आएंगी। और हो सकता है कुछ बच्चे रीच आउट न करें, हमें अब डायरेक्टली ना बताएं, तो उनके लिए अनोनिमसली भी पूछा जा सकता है, मींस विदाउट नेम। एक बॉक्स रखा जा सकता है, उसमें बच्चों की जो भी फियर बॉक्स बनवा लें या ऐसे कुछ, उसमें बच्चे अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उस बॉक्स में स्लिप में डालें अनोनिमसली, मतलब बिना नाम लिखे वो लिखे डालें, और बाद में हम वन बाय वन स्लिप्स को डिस्कस कर सकते हैं। या फर्स्ट फ्यू सेशंस अपनी क्लास का भी कुछ मिनट्स बच्चों का वेलबींग पूछें स्टूडेंट से, कि क्या हाल है उनके घर में पेरेंट्स का। तो कुछ ना कुछ हमें अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन में ये स्टेप्स भी। Thank you, ma'am. Very good suggestion. I think we should follow this so that we get to know each other better and share our feelings. अभी रिसेंटली हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट थी जो बहुत ही परेशान बैठी थी, तो उससे जब पूछा गया तो उसने एक लाइन बस बोली, मुझे किसी से कुछ शेयर नहीं करना। सो दैट इज वो एक तरह से उसने एक दीवार बना ली थी, एक वॉल बना ली थी कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक हर स्पीक आउट हर फीलिंग्स। तो ये स्टेज ना आए, इसके लिए हम बहुत जल्दी अर्ली साइंस देख लें और एक दूसरे से हम कम्युनिकेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट। Who can help them? Can anyone tell? Yes, who can help the people who are feeling helpless? मैम सजेशन फ्रॉम काउंसलर। Okay, counselors. Anybody else? Family and friends. Very good. Okay, let's go further. Teachers. Yeah. Physician, pediatrician, psychologist, social worker and school teachers. जहाँ तक मेरे को लगता है कि हमारा जो एक बहुत अच्छा कनेक्शन एक हमारे स्कूल टीचर के साथ हो सकता है, उतना अच्छा कनेक्शन किसी फिजिशियन या साइकोलॉजिस्ट से नहीं हो सकता। हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो जितने अच्छी तरह से टीचर्स से अपने शेयर कर सकते हैं, आई थिंक कि हम किसी टीचर से शेयर कर सकते हैं। सो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स एक अपने टीचर को शेयर करें।
Very good. Can anyone want to say कि do they agree with this or not? उन्होंने बोला है कि ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, बट स्कूल टीचर इज मोस्ट अप्रोचेबल, बिल्कुल आपको रोज मिलते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो. डू यू अग्री और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. Okay, you all. Yes. बोलो बेटा. मैम आई अग्री बिकॉज हम डेली टीचर्स से मिलते हैं और टीचर्स से हमारा लगाव भी बहुत अच्छा होता है, बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी होती है टीचर्स से. हम अपनी बात जो बाहर वालों से शेयर नहीं कर सकते, जो हम अपने घर में भी शेयर नहीं कर सकते, बट वो बात हम अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं. Good. Anyone would like to add? इम्पोर्टेंट थिंग इज टू रीच आउट. तो अगर 1% कोई टीचर से नहीं भी ट्रस्ट बिल्ड उसका हुआ है, तो वो किसी भी एडल्ट से जो उसको ट्रस्ट वर्दी लगता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पीयर्स भी हो सकते हैं, जो आपको सही गाइड कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि सही रास्ते पे आपको लेके जा सकते हैं, तो आप उनसे भी रीच आउट कर सकते हैं. और अगर पेरेंट्स टीचर से हो जाए तो वेल एंड गुड. Yes. So basic thing is you have to reach out to someone. So if you reach out to them and build a bond of trust, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हर सेशन के एंड में एक ही बात आती है कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करें, एक दूसरे की बात सुने, ताकि वी कैन रिलीव आवरसेल्फ फ्रॉम द बर्डन ऑफ आवर थॉट्स. जब तक हम बात नहीं करेंगे, हमारे थॉट्स दिमाग में इतना ज्यादा एक खिचड़ी सी बन जाती है कि हम उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते. तो टॉकिंग एंड शेयरिंग इज रियली important. Anyone would like to add to it? Okay, Amrita is saying teachers are like our best friend. Good that you think likewise. और कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? Whom would you like to go? Whom would you like to suggest somebody to go? अगर उसको प्रॉब्लम है. आई थिंक हम लोग एक दूसरे को खुद ही हेल्प करें, वही बहुत इम्पोर्टेंट है. यस, ईवीजीसी की मैम है, उनको मैंने इनवाइट भी किया था, बट मे बी शी इज नॉट, शी डिडंट जॉइन फॉर सम रीजन. बट इट्स गुड वी हैव अ काउंसलर इन द स्कूल. आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं. वेरी गुड. मैम एक हेल्पलाइन नंबर भी सभी ध्यान रखें. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर इज 1098. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. 1098 हेल्पलाइन नंबर है. इफ यू कांट रीच आउट टू somebody near you, you can reach out to that number. Okay, over to you. Hope. Hope is just not a word, it's hold on pain ends. There is one more meaning from this verse, which is if you can't hold your pain, you lose your life, you lose your dreams. No matter what happens or how bad it seems today, life does go on and it will be better tomorrow. हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला होता है, बस जरूरत है उस उजाले की तरफ आगे बढ़ने की और आंखें खोलने की और एक नई शुरुआत करने की. बिल्कुल बढ़िया बेटा. Thank you so much. Thank you for the nice presentation. Very well done. Within 2 days आपने टॉपिक जो दिया आपको उसको उसके ऊपर प्रिपेयर किया and you gave a very good presentation. Very nice. Thank you. Both of you did very well. Thank you, ma'am. आज हम फीडबैक सबसे पहले हम प्रिंसिपल मैम से लेंगे. मैम स्क्रीनशॉट कर दूं मैं? नहीं, रहने दो बेटा. Yes, ma'am, please, we request you to give your feedback. Yes. Good evening to all.
गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम। आज का सेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आज के टाइम की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो समस्या सामने आ रही है उसके ऊपर जो बच्चों ने प्रेजेंटेशन अपनी तैयार की बहुत ही अच्छी रही। मेन डिस्कस किया कि क्या कारण हो सकते हैं कि बच्चे या बड़े या कोई भी व्यक्ति सुसाइड की ओर जाता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कैसे पहचान हो सकती है और कौन हेल्प कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। ये जिस बच्चे ने ये प्रेजेंटेशन तैयार की है उसको मैं बधाई देती हूँ और उनकी मैडम को। समस्या के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से विचार विमर्श हुआ, बच्चों ने, टीचर्स ने अपने विचार रखे। बात ये यही है कि हम टाइम से पहचान लें जो भी सिम्टम्स या साइंस हैं, एक दूसरे को देखें, समझें, बात करें एक दूसरे के साथ। और अगर कहीं हमें हेल्प की जरूरत है या हमें लगता है किसी को हेल्प की जरूरत है तो बिल्कुल आगे आएं और बात करें। बात करने से हर समस्या का समाधान हो सकता है। बात करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, आपके वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। एंड आई थिंक सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम सब भी बहुत इस बात को फॉलो करेंगे कि वी शुड ऑलवेज हेल्प ईच अदर और वी शुड रीच आउट टू हेल्प ईच अदर। थैंक यू मैम। कैन वी गो टू द स्टूडेंट्स फर्स्ट? कोई फीडबैक कौन देगा? मैम मैं यस डॉली। यस मैम, इनका पीपीटी बहुत अच्छा था और जो टॉपिक लिए वो सारा मतलब जो ये हमारा जो टॉपिक है पूरा कवर अप हो गया। और जो लास्ट में इन्होंने कोटेशन ऐड करी वो मुझे सबसे अच्छी लगी। बहुत अच्छा था। Thank you. And one more student would like to give a feedback. मैम कहना है। Yes. मैम इनका जो टॉपिक था वो सबसे डिफरेंट था और मतलब जो हमने कुछ आज नया सीखा। Yes, Amrita, very good. मैम वैसे हमें पता था अगर कोई सुसाइड करना चाहता है या कुछ भी तो हम उसको कैसे समझाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। बट आज मतलब आज हमें पता चला कि हमें उसको कैसे कैसे समझा सकते हैं, हम उसको कितना हम क्या करें, हमें नए नए आइडियाज मिले इसमें। Yes, very good. बहुत फूड ऑफ थॉट था कि हम ध्यान में रखें किन बातों का, ये बहुत इम्पोर्टेंट थी। Very good. यस मैम। Okay, over to the teachers. Would anybody would like to volunteer to give a feedback? Anybody? प्रियांशी और स्नेहा, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी बेटा और टॉपिक बहुत अच्छा लिया है। जैसा अमृता ने कहा कि नॉर्मली जो टॉपिक होते हैं हम सारे लेते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है और सोचने लायक है ये टॉपिक। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, डिस्कशन बहुत अच्छी थी। वेरी गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you. Anju ma'am, would you like to give your feedback? I think she's not there. हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी, ये बहुत अच्छा सेशन हुआ कि हम लोगों ने आपस में बात शेयर करके सुना। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जब बात कर लेते हैं तो हमारा जहाँ दिमाग होता है ना वो अलग जगह चला जाता है, हम उस चीज से निकल जाते हैं और एक फील फ्री करते हैं। फ्री फील करने से ना माइंड को थोड़ा रिलैक्स होता है और फिर हमें सोचने के लिए और टाइम मिल जाता है। अगर हम नहीं बात को बताते हैं या हम भर के बैठ जाते हैं तो हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है ना। कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी स्टूडेंट को तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या ही कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर हम एक उसमें रहते हैं दायरे में
तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। और उससे बैकअप करने के लिए या उसके बैक स्टेप लेने के लिए या फिर कुछ भी गलत हम करें उससे पहले कि हमें किसी को बता देना चाहिए। थोड़ा सा अपनी बातें शेयर करना बहुत जरूरी है, सोशल होना बहुत जरूरी है। ये चीजें तब होती हैं तब जब हम बिल्कुल बाउंड हो जाते हैं अपने आप में। ठीक है, तो मेरा सभी बच्चों से यही है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे पहले शेयरिंग करिए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए। ये नहीं है कि सबको, पर जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, जिससे आप शेयर करना चाहते हैं, दब के नहीं रहना होता है। अगर दब जाते हैं तो कई बार हमारा डिसीजन ही गलत होता है, हमारे अंदर की सोच ही गलत होती है और हम वो सोचते ही चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता उसका राइट थिंग क्या है। तो जब हमें कई बार लोग समझा देते हैं या बता देते हैं तो कई बार हमें नया डायरेक्शन मिल जाता है और एक नई जिंदगी, या आप कह लो एक सेकंड चांस, कुछ भी कह सकते हैं कि हमारी लाइफ वहां पे सेव हो जाती है। वो डिसीजन लेने से हम बच जाते हैं। तो ये चीज हमें सोचना चाहिए। कई बार ये ज्यादातर चांसेस क्या है, 11th 12th में, या जो एज ग्रुप है ना 13 to 18 वाला जो एज ग्रुप है, ये बच्चे स्ट्रेस ले जाते हैं। ये जो एक एज ग्रुप होता है यहाँ पर टेंशन ज्यादा हो जाती है। इसमें मेन एक रीजन होता है कि जो ये स्टूडेंट्स होते हैं 13 to 18 एज ग्रुप का कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, वो उसका एक ये होता है कि पेरेंट्स के साथ उनकी बॉन्डिंग और फ्रेंड्स के साथ उनकी बॉन्डिंग का में डिफरेंस होता है। वो फ्रेंड्स को अपना बहुत लॉयल मानने लग जाते हैं और पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा ये सोचते हैं कि ये हमें मना ना करें, टोका टाकी ना करें, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं। वो चीज हमें देखना है, उस चीज को समझना है, उस स्टेज को समझना है। जब हम नहीं समझते तो हमारा रॉन्ग डायरेक्शन हो जाता है, हमें गलत राह मिल जाती है। इस चीज को समझना है कि हमारे पेरेंट्स हमारे भले के लिए ही हैं। और कुछ भी ऐसा होता है तो शेयरिंग इज मस्ट, कि शेयरिंग करो, अपनी बात कहो, और ये बहुत जरूरी है। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज पर, इस टॉपिक पर जो आपने बताया वो बहुत अच्छा बताया है। और ये चीज कम हो, इसका कम हो ये चीज, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना दिल खोल लो, बताओ। कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं वो हमारे पास है ही नहीं, वो डायरेक्शन हमें लेना ही नहीं है। तो बताने से हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अच्छा ये भी कर सकती थी मैं, तो मैंने बच जाते हैं ना वो इंसान फिर उस साइड से जाने में। तो मेरा यही कहना है कि आप सभी इस चीज को ध्यान रखें कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम एक ही चीज में बाउंड नहीं रहते। हम कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना होता है कि हम कुछ भी करें और हम किसी को ना बताएं। कोई भी करने से चीज पहले हमें पेरेंट्स की, नहीं तो कोई एक फ्रेंड हो जिससे हम अपनी बात ऐसे कह सके, जो हमें सही गाइड कर सके, तो हमें जरूर ये चीज करनी चाहिए। ठीक है सभी को। Thank you, Anju ma'am. Very rightly said and very helpful words for our students also. Any last sharing थैंक यू मैम। before I close? Anyone want to add anything to it? Okay. I would, थैंक यू हिमांशी, yeah, वेरी sure. प्रेजेंटेड। पीपीटी आपने बहुत अच्छी बनाई। आई थिंक जितने कंटेंट आपने इसमें लिया वो सारा कवर हो गया जो होना चाहिए, और डिस्कशन भी बहुत अच्छा था और इंटरेक्टिव सेशन था। सो वेरी वेल प्रेजेंटेड। थैंक यू ज्योत्सना मैम। मैं भी यही बात कहने वाली थी। इन दोनों बच्चों ने विदिन 2 days, इनका टॉपिक कुछ और इन्होंने सोचा हुआ था जो मैंने सुना भी नहीं। मैंने कहा कि नहीं यही टॉपिक लेना। 2 दिन में इन्होंने पूरा कंटेंट तैयार किया, स्क्रिप्ट लिखी, अपना प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया दिया। दिस इज रियली कमेंडेबल एंड द बेस्ट थिंग वाज दे वर वेरी कॉन्फिडेंट। मैम हो जाएगा, आप चिंता मत करो। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इन बच्चों ने कल शाम को जब डेमो दिया तो 10 मिनट में आई कुड मेक आउट कि दे आर कॉन्फिडेंट इनफ, एंड दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। वेरी गुड मैम, रियली नाइस सेशन। तो डिस्ट्रेस टू डी स्ट्रेस हमने सीखा, और आपको बस अपने से ही खुद से बेटर वर्जन बनना है, दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। और टाइम को रिलेटेड अगर है तो टाइम मैनेजमेंट करना है। इस स्टेप से किसी और को लेसन नहीं मिलता। और वर्स्ट सिनेरियो सोच लीजिए कि
कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा कि ये हो सकता है, लेकिन ये वाला स्टेप नहीं हमने उठाना, क्योंकि लाइफ बहुत प्रेशियस है, जीवन अनमोल है, और हमें गॉड का गिफ्ट है ये, तो इसे स्नैच करने का भी राइट हमें नहीं है। So very well presented, everyone. Thank you, Kirti ma'am. Very well said and very important also. Last, Priyanshi and Sneha, please give your feedback about your experience. यस मैम। मैम मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, पर मैम एक तरफ से ना मेरे को डर भी लग रहा था, बिकॉज मैम आप वेडनेसडे को सडनली क्लास में आए और हमसे कहते कि पीपीटी तैयार करके दे दो। सो मैम थर्सडे वेडनेसडे तक तो मैम हमें होश ही नहीं था कि मैम हमें करना क्या है। बट मैम फिर थर्सडे को स्नेहा कहती कि पीपीटी तैयार करके मैम को देनी है, संडे को देना है क्या। एंड मैम देन हमने ना फ्राइडे को मिलकर सारा काम किया, और फिर मैम जब हो गया ना, तो हमें अभी मैम बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने जितना मतलब सोचा था उससे ज्यादा अच्छा हुआ है मैम। Yes, and this was not a common topic. इसमें बहुत आपको रिसर्च करनी पड़ी होगी, and you did it very well. Very good. थैंक यू मैम। स्नेहा, यस मैम। मैम जब आप बोलने आए ना कि आपको तैयार करना है इस टॉपिक पे, तो फर्स्टली तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गई कि एकदम से कि इतनी सडनली कैसे होगा इस टॉपिक पे। फिर मैंने सोचा कि जब मेरा टॉपिक ही डिप्रेशन से रिलेटेड है तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगी तो मैं बताऊंगी क्या। so positive, very positive, very good, beta. I am so proud of you girls. Very good. थैंक यू मैम। I think it's will stop at a very good note. कि जिंदगी बहुत कुछ हमें देखना है जिंदगी में, तो लेट्स नॉट थिंक ऑफ द नेगेटिव थिंग्स, लेट्स लुक फॉरवर्ड, और हमेशा सोचो कि फ्यूचर अच्छा होगा, तो एक पॉजिटिव थॉट्स हमारे लाइफ में होंगे। और मैं तो ये सोचती हूँ अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, तो नेगेटिव थॉट्स आने ही ना दो, तो अभी लाइफ को बहुत एंजॉय करना है। तो इस पॉजिटिव थॉट के साथ let's close the meeting, and I'd like to thank everyone who joined for being with us and encouraging us, and special thanks to principal ma'am जो पूरा 1 घंटा हमारे